Hello everyone, good evening. Okay, so I just need to do some settings first before I start. Alright, so I'm pretty much live on Facebook right now. So, welcome everyone to the second episode of Coaches Talk Show Season 3. And first of all, I wanna start with a special heartfelt gratitude to each one of you for giving your positive response for our this show, because if you have not given your feedback, if you were not there with our sessions, inspire us to take action each and every day, we would not be here with this season 3. So thank you so much each and every one of you for being given us positive feedback for this show. And today we are here with our second episode in this series with an another inspiring guest. So before I invite our guest of the day, I would like to see how many of you are there with us joining live. Okay, so if you are here in this session and if you can see us live, please type live in the comments. If you can see the replay, if you are watching the replay of this session, please type replay in the comments. All right, so as the comments are loading, I have already checked that I am pretty much live on Facebook and I'm visible and audible both. So I hope you can also see and hear me properly. If not, then you can reconnect again. Now, I would like to start with my introduction before I invite our guest of the day. So, yeah, thank you so much for joining in. Please stay with us till the end. So, my name is Neha Garg, and I'm a digital skills coach for women entrepreneurs, empowering them to take action, find clarity, and take action with courage to build their business online confidently. So, this is about me, and today we have a very special guest. Her name is Khushbu Agrawal, and she is a weight loss expert. Also, she is an inspiring author, and she is here with us to guide us the weight loss journey which she always share with her mentees. So with a virtual clapping, I would like to invite her on this Facebook live on this episode of Coaches Talk Show, and we'll have conversation with her. So Kushbu, I would like to invite you here. Hi Yes. Neha, thank you so much. Thank you so much for accepting our invitation and joining the Coaches Talk Show. So I hope all of you can also see her with me. Yes, we have Hi one. everyone. Yes, so I was just checking that we both are audible or visible or not. So, Great. yeah. So thank you so much. I have already shared a little bit about you. Would you like to share more introduction about yourself with us? How did Yes, you, so what was the purpose behind? great. So how I started is when my son was 2 year old and I got like severe back pain and I was on bed rest. I was not able to walk. At that time, I was so scared, like, what will happen to my son? Now I can't run behind him. I can't give him, feed him. I can't, नखरे नहीं उठा सकती मैं अपने husband के खाने पीने के मामले में because I became completely dependent on nanny. And my son was just 2 years and I was thinking कि बाद में क्या होगा? So when we get diagnosed with doctor, they checked everything. They told like muscles, back muscles थोड़े weak हो गए हैं क्योंकि वो आपके बॉडी का वजन नहीं सहन कर पा रहे हैं। तो आपको वजन कम करना जरूरी है वरना आपका बैक और प्रॉब्लम में जाएगा और आप बेड रेस्ट में और ज्यादा जाओगे मतलब। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो वजन मैं कैरी कर रही हूँ अपने शरीर में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरी फैमिली के फ्यूचर के ऊपर। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं खुशबू, अब और नहीं, मेरे बच्चे इसकी कीमत नहीं चुकाएंगे, मेरे हस्बैंड भी उसकी कीमत नहीं चुकाएंगे। तो आई डिसाइडेड कि अब तो करना ही है, लेकिन क्या कैसे नहीं पता था।
तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में गोल सेट किया, और मेरा पहला गोल था कि मुझे 10 मिनट्स वॉक करना है। फ्रॉम दैट देयर आई स्टार्टेड एंड आई हैव लॉस्ट 23 kgs एंड आई मेंटेन्ड इट, एंड नाउ आई एम हेल्पिंग other women's also. And it is not just a weight loss, not just diet and exercise and all thing. It is about changing your identity, changing your self image. So if, for example, if I when I say to people that you are not fat, you have fat. सो बट व्हाट पीपल विल से, नो नो खुशबू, ये आई एम फैट, मैं मोटी हूँ। तो लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने यही कहा है ना बचपन से कि तू मोटी है, तो वो मोटी एक आइडेंटिटी बन चुकी है हमारी। लेकिन जो मोटापा है, जो बेसिकली जो फैट टिश्यूज है, जो फैट सेल्स है, वो क्या है, वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। अब जैसे मान लो बाल है, बाल कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो क्या हम बाल है? नहीं। नाखून बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली, क्या हम नाखून है? नहीं। तो बट लोग, वो जो आइडेंटिटी को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम कितना भी क्रैश डाइट कर ले, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में हम वापस वो वेट गेन कर लेंगे, और हम हैप्पी नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली ऑल ड्रिल डाउन की आप कितना हैप्पी है अपने बॉडी के साथ, अपने लाइफ के साथ। Yes, and I truly agree with your thought that many of us has belief that we are fat, but that's not the truth. We have fat. So this just one sentence which you just said is actually, opened up so many discovery question in it. Okay, so let's have a conversation around it. So like श्योर। many of people who are listening to us, maybe हम्म। they will understand that why this fat actually is taking them in a wrong direction. कई बार क्या होता है ना कि अम, हमें लगता नहीं है कि हमारा जो फैट है वो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट बन रहा है, बट एक्चुअल में हमारा फैट ही होता है जो कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन में हमें पीछे करता रहता है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जब वेट गेन करते हैं, स्पेशली अगर मदर्स की हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टपार्टम वेट गेन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाती। हम्म। आप करेक्ट। इसके बारे में तो बताना। जैसे, हाँ, तो कोई भी चीज पहले ना, जैसे द सीक्रेट मूवी में भी कहा है कि कोई भी चीज पहले माइंड में क्रिएट होती है, बाद में वो रियलिटी में क्रिएट होती है। तो पहले हमें माइंड में अपनी आइडेंटिटी चेंज करना है। उसके बाद हमें एक एक्चुअली एक फिट पर्सन बनना है माइंड में। मेंटली हमें पतला होना है। तो मैं मोटी हूं से मैं फिट हूँ, ये हमें मेंटली करना है। और हम स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इमोशनली वीक हूँ, मेरा तो क्रेविंग में कोई कंट्रोल ही नहीं है, स्वीट के सामने मैं अपने आप खा लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। लेकिन रियलिटी इसकी, आपका आप वीक नहीं हो, ना तो आप वीक हो ना आप मोटे हो। जो हमारा जो किसी भी इंसान का माइंड जो है ना, वो डिजाइंड है फॉर टू थिंग्स ओनली, टू रन अवे फ्रॉम पेन एंड टू सीक प्लेजर। मतलब क्या? अगर आपको किसी इंसान या कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज या कोई भी थॉट, कोई भी मेमोरी, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपको आपके बारे में फील गुड नहीं करा रहा है, फील बैड करा रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या है? आप पेन में हो। आप या तो इमोशनल पेन में हो, आप या मेंटल पेन में हो, या फिर अपने कोई फिजिकल इश्यू की वजह से आप कोई फिजिकल पेन में हो। अगर आप पेन में हो, आप कुछ खाओगे जिससे आप पेन से भागोगे, तो यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, जब भी हम मीठा खा रहे हैं, हम पेन से भाग रहे हैं, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हम पेन से भाग रहे हैं। और ये हमारा माइंड डिजाइन्ड है वो काम करने के लिए। तो आप उसको हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप पेन से भागोगे मतलब बेसिकली आप स्ट्रेस से भाग रहे हो, लोनलीनेस से भाग रहे हो, बोर्डम से भाग रहे हो, लो सेल्फ इमेज से भाग रहे हो। वट एवर पेन यू हैव, दैट डजेंट मैटर, दैट पॉइंट इज कि आप पेन से भाग रहे हो और प्लेजर सीख कर रहे हो। तो अगर आपको पहले ये समझना है कि पेन से भागने के लिए, अगर आप खाना खा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका पेन क्या है।
और आपको वो जो पेन का जो लिंक है वो चेंज करना है खाने से ज्यादा कोई और चीज के से। तो पेन का एसोसिएशन चेंज करना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिट इंसान सुबह सुबह ट्रेडमिल में भाग रहा है, हमें लगेगा ना क्या पागल है, क्या इतना फिट है, ठंड में इतनी सुबह में क्यों भाग रहा है, आराम कर सो जा, क्या क्या क्यों भाग रहा है। तो उसके लिए वो भागना, आपके लिए वो पेन है लेकिन उसके लिए प्लेजर है, इसलिए वो फिट है। लेकिन वैसे ही किसी को डायबिटीज है, उनके बच्चे बोल रहे मम्मा मीठा मत खाओ, आपको कुछ हो जाएगा, 400 शुगर है, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, फिर भी वो लेडी मीठा खा रही है। उसके पास भी दिमाग है, उसको भी समझता है, ऐसा नहीं है कि वो वीक है या मोटी है या कुछ कर नहीं सकती। उसका पेन का एसोसिएशन गलत है, तो गलती आपकी नहीं है। दैट्स व्हाट आई, वो क्या सोचते कि वो खुद गलत है, वो गिल्ट ट्रिप में जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खुद को प्रॉमिस करते हैं मैं अगली बार ऐसे नहीं करूंगी, फिर गिल्ट ट्रिप में चल जाते हैं। तो गलती आपकी नहीं है। गलती पेन का जो लिंकिंग है, जो एसोसिएशन आपने मतलब ट्रेन किया है खुद को कि यार एक्सरसाइज करना पेनफुल है, तो ये जो लिंकिंग हुआ है इसको कंडीशनिंग या ट्रेनिंग बोलते हैं। और ये कहाँ से आता है, वो गलत है। और वो आता कहाँ से है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आता है, आपके अपब्रिंगिंग से आता है, जो भी आपने देखा सीखा, जो आपको एक्सपोजर मिला है और जो पैटर्न्स रिपीट हुए हैं उससे आता है। तो ये डाइट और एक्सरसाइज है, लेकिन आपको सबसे पहले सेल्फ इमेज चेंज करना है, साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा फैक्टर है वो। और प्लस हमें ऐसा लगता है कि हम वेट लूज कर लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने बॉडी में, लेकिन द फैक्ट इज कि हमको पहले हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करना है, फिर हम वेट लॉस हम्म। करेंगे। यानी कि आपने बताया उससे ये चीज़ पता चली कि हमें सबसे पहले अपने खुद के इंटरनल इमेज पे वर्क करना है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे हम्म। बिलीव्स क्या हैं और हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे परिणीति चोपड़ा का बहुत आया था एड में कि उन्होंने किस तरीके से अपना वेट लूज किया, बट फिर धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने वेट गेन भी कर लिया। हम्म। तो हमारा जब वेट लूज होता है तो उसके पीछे भी हमारा एक पर्पस होता है, एक ब्रेक थ्रू होता है जिसकी वजह से हम वेट लूज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना डाइट चार्ट बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशनल प्लान बनाते हैं, एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, और फिर हमारा एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम उसको छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस पे चले जाते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो सदाबहार अपना वेट लॉस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है, जैसे आप शिल्पा शेट्टी का देखोगे, खूब अच्छे से खाती-पीती है, खूब मतलब डाइट पे भी रहती हैं, वेट भी हम्म। मेंटेन रहता है, फिर भी अपना खाना-पीना खूब अच्छे से खाती है, एंड यू यू हैव सीन अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। बट हम लोगों के साथ में क्या होता है कि अगर हम आज जिम कर स्टार्ट करना शुरू करें, तो कुछ समय बाद हम जिम जाएँगे एंड उसके बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारे पास एक्सक्यूज़ आ जाएँगे, हमें 5-50 रीज़न हम दे देंगे और उसको छोड़ देंगे, ठीक है? सो आपने जो ये चीज़ बताई, कितना पॉसिबल होता है, इट्स लाइक, क्योंकि आप बता रहे हो माइंडसेट के बारे में, एंड माइंडसेट इज समथिंग व्हिच कैन बी चेंज इन वन डे और व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन वन ईयर इवन। Okay, so how do you actually measure a person's performance, that if she is coming to you and she wants to lose her weight, so how much time do you think a person has to give to see the shift in their mindset to start their journey? सो व्हाट आई से कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग हुआ है वो Hmm. एक दिन में हुआ नहीं है। तो Hmm. उसको रेपिटेशन, रेपिटेशन इज द पावर। Hmm. अभी जो भी आपके पैटर्न्स है वो पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिपीट हो चुके हैं अभी इतने सालों में। Hmm. तो मिनिमम आई से 3 to 6 months, तो 3 months मिनिमम मुझे चाहिए टू चेंज योर माइंडसेट एंड रिजल्ट्स जो दिखता है। तो 1 महीने में क्या होता है, रिजल्ट आपका इनविजिबल फॉर्म में आता है, जैसे आपके हैबिट्स में आना शुरू होगा, आपके माइंडसेट में आना शुरू होगा। 2 महीने में रिजल्ट आपका काफी कुछ रूटीन में आना शुरू हो जाता है। 3 महीना में एक्चुअली आपको विजिबल चेंजेस दिखने लगते हैं अपने बॉडी में। Hmm. सो 3 months इज व्हाट आई सी टू स्टार्ट विद द जर्नी। और 6 months इज टू, फिर वो परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं जहां आप लॉन्ग लास्टिंग फिर बेफिक्र होके रह सकते हो। And that is something which I think every woman is looking for, to not only reduce the weight but to maintain the weight as well.
सो तो yes. इफ यू आर थिंकिंग कि मैं 40 से 20 किलो की हो जाऊं और फिर वो 20 किलो मैनेज रहे, नहीं, 40 से 20 तो बहुत ही कम हो गया। Okay, so whatever you're thinking, I think this is the best discovery session for you to ask any question which you feel like. So here, I wanna ask you one more thing, Kushbu, Hmm. that how much diet and exercise plays a role in weight loss, and which one should a person continue, because there are so many forms. There Hmm. are, you Hmm. know, जिम एक्सरसाइजेस, जुम्बा, पीटी। मुझे तो आज तक पीटी और जुम उसमें अंतर ही नहीं समझ में आया कि पीटी और वो जो कराते हैं जिम में उसमें क्या अंतर होता है। एंड देयर इज अ योगा, एंड देयर इज डिफरेंट डिफरेंट, it's like ancient exercise as well which people Hmm. talk about. Hmm. So with one, a person should start at different levels. Like somebody is at 60 kg, somebody might has been on, just putting up a little weight. And कई Hmm. बार क्या होता है कि जैसे हमारे सिजेरियन जो होते हैं ऑपरेशन, उसके बाद में कई सारी एक्सरसाइज मना होती Hmm. है ना। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे कि अगर कोई भी विमेन अभी अपना वेट लॉस स्टार्ट करना चाहती है तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? What I would say is कि we need to first understand and accept कि डाइट और एक्सरसाइज इज वन पार्ट ऑफ इट, एक ब्रिक है वो हम्म। सपनों का महल का एक ब्रिक है। तो आपके सपनों के बॉडी का डाइट और एक्सरसाइज एक ब्रिक है। हम्म। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आप कितना, अगर कोई भी इंसान इनसिक्योर फील करता है ना, तो वेट इज एक्चुअली ए सेफ्टी बेल्ट, ए सेफ्टी नेट। तो जो फैट है वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर। हम्म। तो इनसिक्योरिटी पे काम करना जरूरी है। तीसरा, लैक ऑफ सेल्फ, वेट इज नथिंग बट सेल्फ केयर। हम्म। तो लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट द जर्नी, डोंट आस्क हाउ डू आई डू लूज वेट, डोंट आस्क हाउ डू आई मेंटेन वेट, आस्क व्हाई डिड आई गेन वेट। हम्म। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, क्योंकि ये सब बैंडेड सोल्यूशन है। तो डाइट और एक्सरसाइज पे आएंगे, वो जो भी सस्टेनेबल है। देर इज नो राइट और रॉन्ग वे। what makes you easy in a long run, that is right way, जो आप इंजॉय करते हो। क्योंकि अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट सस्टेन इट। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंजॉय 15 मिनट डांस compared to gym, then that is sustainable for you, so that is the right for you. So whatever you enjoy is right for you. Like if you enjoy 10 minute just घर पे वॉक कर लिया, कंपाउंड में ही खाना खाने के बाद, so that is sustainable for you. डाइट भी वही फॉलो करना चाहिए जो सस्टेनेबल है, इफ यू वांट कि आपका वेट वापस बढ़े नहीं। अगर आप तामझाम करोगे, इट्स लाइक कि आप कितने दिन तक फेक कर सकते हो। हम जैसे कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, सो वी कैन फेक ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। उससे ज्यादा हम फेक नहीं कर सकते, हम अपना असली चेहरा दिखाई देंगे। एग्जैक्टली सेम चीज है जब आप अपने वेट लॉस के साथ रिलेशनशिप में हो। यू कैन नॉट फेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। So that is why don't believe in faking and doing fancy stuff. Do things which are sustainable and real to you, enjoyable to you, connecting to you, and matlab what, there is no right way. The way which fits you, like there is a no right person. The person which fits you, who can accept you, who can tolerate you, is a right for you. Similarly, करेक्ट। जो भी डाइट है, जो हमारा ड्रीम डाइट, ड्रीम प्रिंस के जैसे हम ढूंढ रहे हैं, तो जो आपके लाइफस्टाइल, आपके मूड के साथ फिट हो सकता है, वही मतलब आपका न्यूट्रिशन होम बन सकता है। Wow, that's really nice. And I think each and every one of you thinking about that, how should I start and which one is good? So you got the perfect answer. Go with your mood. And I think this is one thing which if I say ना, मतलब बच्चों को पढ़ाना हो ना, उसको बोलो लेट के पढ़ना बेटा, लेट के पढ़, लेकिन पढ़, हम्म। वो जरूरी है। तो कोई भी एक्सरसाइज करो पर करो, वो जरूरी है, नहीं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। एंड करेक्ट। then the last question I think most of them will have in their mind is my personal question, that I have seen if there is nobody to push us from the back that do it, do it, do it, हम्म। most of the time even after finding all that,
कि हमें क्या डाइट रूटीन फॉलो करना है, क्या एक्सरसाइज करना है। कहते हैं ना, यूट्यूब पर जाके हमने 50 वीडियो देख लिए और हम ज्ञानी बन गए, अब दूसरों को बता देंगे कैसे डाइट मेंटेन करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि किस तरीके से, मतलब किसी को भी हम्म। के साथ में वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट करना चाहिए? तो वेट लॉस जर्नी हमें इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में कैसे जज करते हैं इंसान को। तो हमारा उनका एक इमेज होता है हमारे माइंड में। तो दैट इज कॉल्ड इमेज। तो अगर हम अपना वेट नहीं कम कर पा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम कितना भी उसको एक्सेप्ट नहीं करें, इग्नोर कर दे, चलता है, सभी तो मोटे, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे होने के बाद ऐसे ही हो जाता है लाइफ। और लेकिन क्या होता है ना कि हमारा इमेज पे वो इम्पैक्ट करता है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है। तो मैंने खुद देखा है कि जब मैंने 23 kg वेट लॉस किया, तो पहली बात है कि मैं हैप्पी हो गई, मैं कंफर्टेबल हो गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गई अपने बॉडी में, कपड़े पहनने में। और मतलब लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लगने लगी। सेकंड, रिलेशनशिप विद हस्बैंड काफी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हम रिलेशनशिप में वही देते हैं जो है हमारे पास। तो अगर हम हैप्पी फील कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कि एक विमेन को बचपन से सोसाइटी ने कंडीशन किया है मेन के लिए, जैसे तुमको पैसा कमाना जरूरी है, दैट इज योर फर्स्ट थिंग। विमेन को सोसाइटी ने बोला ही है कि तुमको सुंदर दिखना जरूरी है। तो ये हमारा कंडीशनिंग हो चुका है, ट्रेनिंग हो चुका है। तो जब हम एक्चुअली सुंदर दिखने लगते हैं, आईने में जो इंसान है हम उसको देख रहे हैं, हम उसे पसंद कर रहे हैं, हम प्राउड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो हम वो ऑरा अपने आप वो रेडिएट करने लगते हैं। हम अपने आप वो चार्मिंग बन जाते हैं, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अपने आप बनने लगते हैं। फिर हर कोई हमसे जब अट्रैक्ट होता है, इन द सेंस की नॉट इन नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे, तो उससे मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट होता है, उससे रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। जब रिलेशनशिप इंप्रूव होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चल जाता है, क्योंकि एज ए विमेन हमें सपोर्ट चाहिए ही अपने हस्बैंड का। हम कितना भी डिनाई कर ले कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन एट द सॉफ्ट कॉर्नर एक हार्ट है हमारा, जो वो सपोर्ट ढूंढता है रिलेशनशिप पे। और जब वो सपोर्ट मजबूत हो जाता है ना, तो हम मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए खुद को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, फॉर आवर रिलेशनशिप। और सेकंड, जब हम प्राउड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो वो सेकंड बेनिफिट है। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं। हम भाग किसके पीछे रहे इतना, हैप्पी होने के पीछे भाग रहे हैं। और अगर हम हैप्पी नहीं है, तो इसलिए हैप्पीनेस इज लाइक, आई थिंक हैप्पीनेस के लिए वेट कम, अगर हम वो फॉर्मूला क्रैक कर लिए, अपने लाइफ में कम कर लिए और मेंटेन कर पा रहे हैं, सो इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। इट्स लाइक हमारे पास आज बच्चा है, बच्चा हमारा, रोज क्या हम खुश रहते हैं अपने बच्चे के साथ? नहीं, हमको स्ट्रगल भी करना पड़ता है अपने बच्चे के साथ। कभी रोना आता है, कभी हेल्पलेस फील करते हैं, कभी ग्रिप करते हैं, कभी कंप्लेन करते हैं, कभी क्राई करते हैं। लेकिन ओवरऑल हैप्पीनेस हमारा लाइफ का कितना ज्यादा इंप्रूव हो गया है, क्योंकि हमारे पास बच्चा है, हम मदर है। ये सब अग्री करते हैं एग्जैक्टली exactly। वैसे ही हमारे पास अगर हमारी एक आइडेंटिटी है, कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी, और हमारे पास अगर हमारा एक कॉन्फिडेंट बॉडी है जिसके साथ हम कंफर्टेबल है लाइफ लॉन्ग के लिए, हमको चिंता नहीं करना, अरे यार खाऊं कि नहीं खाऊं, वेट बढ़ जाएगा क्या, एक वो रूटीन में सब सेट है, तो करेक्ट। वो एक ओवरऑल हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है हमारे लाइफ। Correct. So those of you who are listening to us, you understood the all the benefit of starting your weight loss journey. And here I will add this one thing only, that even if you know all this, but still if you feel that you are not able to do it, that means you require a coach. All हाँ, right. और कोच इसलिए भी चाहिए क्योंकि आ, हमारा ब्लाइंड स्पॉट, हमें खुद को नहीं पता रहता है कि हमारे पैटर्न्स क्या है, हमारे लाइक रूट कॉज क्या है, हम गेन क्यों कर रहे हैं, कौन सा इमोशनल नेगेटिव एक्सपीरियंस हमको ट्रिगर करता है खाने के लिए, कौन सा नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद हमने वेट गेन करना शुरू किया है। क्योंकि वेट लॉस इज ए वेरी डीप कॉन्सेप्ट, इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट इज आई थिंक 80% साइकोलॉजी एंड 20% डाइट एंड एक्सरसाइज।
तो Hmm. वो जो 80% साइकोलॉजी में हम मार खा रहे हैं। तो कोच जो होता है वो ऑफकोर्स आपको फॉलो अप तो करता ही है कि आप क्यों कर रहे हैं, प्लस दे विल आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ इन दैट एरिया, कि कहाँ आपको चेंजेस करना है। जैसे व्हाट यू डोंट नो एंड यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो वाले एरिया में कोच काम आता है। Correct. And that's where you understood that how a coach can help. So thank you so much खुशबू। आपने यहाँ जो कुछ भी बताया उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की कि क्यों हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते और हमें कहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो जो कोई भी सोच रहे हो कि शुगर छोड़ देंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, माइट भी पॉसिबल नहीं होगा। So thank you so much Khushbu. Now before we end, we wanted to take your questions, but if we waited for the questions, it might get might go might be late and go a lot of time. So what we will do is, um, I would request Khushbu to share that if anybody of you wants to connect with her to understand and start your weight loss journey, if she can guide you, she will share. So Khushbu, would you like to guide anybody if they wants to connect with you to understand more about it? Yeah, I will share the Google form and we can get into one-to-one call to understand deeply where they are like missing, Yep, and from missing gaps. yeah, their mental gap and emotional block. Yes, and more than the weight loss expert, she is also a very, very powerful personal coach, I would say, where she will work on your mindset and relation as well. So you will actually understand that why is it happening, what happening in your life. So thank you so much, Khushbu. So we will end with a powerful message from your side for our audience. What would you like to share with each one of them who are listening to our episode? So I will say like it is not your fault. We get into guilt. तो वो जो गिल्ट है, फियर है, वेट, आपका जो वेट है वो इमोशनल वेट है, फिजिकल वेट नहीं है। फिजिकल वेट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इमोशनल वेट। सो व्हाट इज द इमोशनल वेट यू आर कैरिंग, जो दिल पे आप क्या बोझ लेके चल रहे हो अभी तक। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट फील गिल्टी, इट इज नॉट योर फॉल्ट, डोंट फील स्केर्ड, क्योंकि लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। वेट लॉस भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां आप अपने बॉडी को जैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरों से क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, व्हाट ए वीमेन वांट टू बी एक्सेप्टेड फॉर हु शी इज विदाउट एनी जजमेंट, राइट? एंड टू मतलब कोई उनको बहुत इजीली फॉरगिव कर दे एंड एक्सेप्ट कर दे उनकी छोटी छोटी imperfections और फ्लॉज के लिए, and to appreciate for who they are, not for what they are doing. So most of the women is trusted but not respected. तो हम हमारा बॉडी भी हमसे वही चाहता है कि हम खुद को रेस्पेक्ट करें फॉर हु वी आर, नॉट जस्ट हाउ डू वी लुक। तो ये जो इतना बॉडी शेमिंग होता है सोशल मीडिया में, उसकी वजह से नेगेटिव हमारा फीलिंग आ जाती है कि यार आई लुक फैट, आई लुक अगली। लेकिन आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू रिलीज द गिल्ट, रिलीज द शेम, let go, forgive yourself, and accept yourself. And then a new relationship with your body will start, where you appreciate and accept unconditionally who you are. Wow, that's really powerful. And thank you so much, Khushbu, for all this information. I bet all of these information which you get today, you might not even find on YouTube. So consider rewatching this episode to actually understand what was the real message, the deep message inside this show. So thank you so much for each and everyone to be here. I cannot actually see the comments. So if anybody of you ask anything, apologies before we end this show, and we will try to reply your messages through the comment section, or else if you want to connect with Khushbu, you can do that. She will share a And if form. they want to buy book also, they can buy from Amazon. Yes, she has a book also. So we'll share the link of that book in the Google form that they can visit. Yes, right? Yes, All right. So we'll take a snap together before we end today's sure. show.
Okay. I'm gonna share this for other people who were not able to join because of any reason. And once again, gratitude to you for joining Thank us. you. Thank you so much. Great It is show. an honor to be here. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much, dear. And thank you so much to each one of you. Consider rewatching the episodes. And if you have missed our season 2 and season 1 episode, you can visit my YouTube channel, Coach Neha Garg. There you will find every episode of Coach's Talk Show. So, see you next time with another inspiring speaker. Till then, keep growing, keep being amazing. And yes, Merry Christmas to each. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas to each and every one of you, and also Happy New Year in advance. Happy New Year in advance. See Yes, you soon. see you Thank you so soon. much. Bye Bye. bye. Thank you.